Today we'll discuss some questions related to the topic. Just note it down. At the same time, we analyze the questions also. ठीक है ना? जैसे सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे पहला आपका है सेगमेंट that is the introduction part of the operating system. So we have some questions related to the introduction to operating system. There is a particular section like process management. Then there is a main memory management. Then secondary storage management. Then under secondary storage, we discuss about the disk storage, disk scheduling algorithm, disk management, magnetic disk, and the particular. Then, as per your syllabus is concerned, I just open the particular syllabus. There is some more. After that, there is an introduction to particular Linux. Okay, then there is a Linux. Just see that there is and after Linux there is VI editor and Shell. Then Linux related details. That means the main portion related to the operating system, and then after we have an example of the particular Linux. यानी कि Linux प्लेटफॉर्म को हम लोग वर्क किए और Linux environment में we just do some work. We just discuss about the features of the Linux shell and the editor on which we can run any program like program written in C, C++, Python, any programming language. So there is certain questions comes from the particular section. We just discussed that one. So basically, there is a particular question from the particular first unit, and that is related with. Just open. Now, basically the first part, like some questions related to the definitions, can we just discuss? Yes, you just note it down. ठीक है ना? आप कुछ क्वेश्चंस नोट करिए. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चंस लिखिए. You just prepare the particular contents. Like first introductory parts, you just mention the question. What do you mean by? Just mention it. I just want to write what. लिख लीजिए. First, just mention
what do you mean by OS, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड what are the various component of OS, ठीक है ना, that is the basic question. And now anyone can give the answer, raise the hand. If you have to define the operating system, then how you can define it, and just give me the list of the component only, don't describe it because you can describe it. Yes, हाँ बोलिए। बेसिक आपका जो है गोल भी आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जनरल एक सेंटेंस का डिफिनेशन होगा। हाँ हर्ष कुमार बताइए। ये सर कंपोनेंट होगा, इसमें आप इनपुट आउटपुट मैनेजिंग, फिर कंसिस्टेंस यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, नीड ऑफ, फिर सर इसका ओएस प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। हाँ, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, हम डिस्कस किए थे कि बेसिकली देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट आर, तो कंपोनेंट में आप वो सारे कंपोनेंट डाल दीजिएगा, यूजर, हार्डवेयर, ठीक है ना, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो then what are the various ways to interact with operating system, ठीक है ना, तो what are the various way to interact with the operating system, तो you can just mention the way, two way system commands and system calls, so that is the two way to interact with the operating system. Maybe question comes in which all the three part is available in the same question. What do you mean by OS? What are the various component of OS? And what are the various ways to interact with the OS? At the same time, what are the various view of operating system? What are the various views of an operating system and OS? तो वेरियस व्यूज में हम लोग डिस्कस किए थे यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू। तो यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस वेज में इंटरेक्शन के लिए सिस्टम कमांड्स के बेसिस पर भी आप इंटरेक्ट करते हैं, और सिस्टम कॉल्स, ठीक है ना। रेस्ट डिफिनीशन यू ऑलरेडी हैव। देन इससे रिलेटेड, यानी कि दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट अगर हम लोग सेक्शन देखें तो हाउ मेनी क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वी जस्ट लिस्ट आउट दैट क्वेश्चन एंड इन डिटेल्स यू ऑलरेडी यू जस्ट मेंशन द डिटेल्स, बट आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रो दैट कि अगर आपको आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो यूजर व्यू में हम लोग देखे थे कुछ, यानी ओएस फ्रॉम यूजर व्यू, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूजर व्यू में आपका जो है टॉप डाउन अप्रोच, ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है, जिस पर यूजर अपना कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट करता है, तो वट एवर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इंटरफेस इज यूटिलाइज्ड बाय यूजर टू सबमिट द रिक्वेस्ट, बिकॉज व्हेनेवर यू आर सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर आइकन थ्रू द पॉइंटर, that means you are selecting the particular icon by using the interface provided by the operating system. Now in the same manner, generations related to the particular OS, so as like computer generation, we just discussed that कि generation by generation, जैसे आप फंडामेंटल में पढ़े होंगे, generation by generation as per the computer is enhanced, operating system is also enhanced. Earlier we have no operating system, and a system having no operating system, bare operating system we have, but later on whenever the advancement of computer generation exists, then the operating system is also enhanced, and generation by generation enhancement occur related regarding the particular OS.
तो जनरेशन से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चंस रहता है, जिसके लिए आप ऑलरेडी फंडामेंटल में डिस्कस करते होंगे, बट दैट इज नॉट अ मेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ अटैच रहता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में you can list out all, starting from batch operating system, then time sharing, real time. मल्टीटास्किंग. हाँ, रियल टाइम में सॉफ्ट एंड हार्ड, soft real time, hard real time. Then you can use here multi-programming, OS, distributed OS, है ना, networked OS, etc. So this is also important questions from this particular introduction parts. ठीक है ना? What are the various types of operating system? Now then there is a question related to a particular one. ठीक है ना? जैसे इस सब में से कोई पर्टिकुलर यानी कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है, तो मेनली टाइम शेयरिंग एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, समटाइम्स सॉफ्ट एंड रियल टाइम से भी क्वेश्चन आता है. तो once you complete this question, then you will complete the entire questions related to the operating system. तो अगर पर्टिकुलर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं. तो ये फुल एक क्वेश्चन आप कंप्लीट करिएगा, एक क्वेश्चन. अब इस एक क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखिएगा ताकि ये आपका डिटेल्स में सारे कंपोनेंट को आप वहां एलिब्रेट कर सकते हैं. ठीक है ना? तो ये एक क्वेश्चन से आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट होगा. नेक्स्ट, हाँ सर जैसे ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सर कह रहा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम या फिर टाइम शेयरिंग है. तो अगर हमको क्वेश्चन आता है ये 4 नंबर वाला, तो हम लोग 2-3 लाइन का आंसर दे सकते हैं मीन, या फिर लंबा लंबा देना? नहीं, लंबा जैसे आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब बताएंगे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा इसका एडवांटेज, 12 नंबर में पूछा है. यस, अगर 12 नंबर में पूछता है तब? हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना. क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी रह सकता है. ठीक है ना? शॉर्ट नोट्स का भी क्वेश्चन रह सकता है. 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर नहीं पूछेगा, उसके साथ एडजंस कुछ और पार्ट क्वेश्चन का होगा. ठीक है ना? जैसे मैं बताया ना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ओएस. ठीक है ना? इन विच मैनर वी इंटरेक्ट विद द ओएस. ठीक है ना? एंड एक्सप्लेन वेरियस व्यूज ऑफ एन ओएस. तो ये सारे कंबाइंड क्वेश्चन एक हो सकते हैं. अब ABCD करके दिया जाए या एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में वेरियस सेगमेंट दे दिया जाए, तो यू हैव टू गिव मतलब यू हैव टू गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन डिजाइन इन द क्वेश्चन. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से केवल आपको 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहेगा. अगर 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, रियल टाइम ओएस, ये सब में शॉर्ट नोट्स करके क्वेश्चंस रह सकता है. अर्लियर जो क्वेश्चंस आया है उस हिसाब से, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर फुल क्वेश्चन, क्योंकि फुल क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 12 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ओएस अगर पूछ दिया जाए तो इसको आपको ब्रीफ करके ही लिखना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये एक क्वेश्चन जो है कम से कम 12-15 पेज में चला जाएगा आपका आंसर, अगर फुली डिस्क्राइब करेंगे सारे सेक्शन को तो. ठीक है ना? तो आपको तो पहले लिस्ट एक दे देना होगा, यानी whenever this question comes along with the particular question like what do you mean by operating system and what are the various types of operating system, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर, तो what do you mean by operating system, you can write the answer using definition for the operating system, and then after you list or give the list of various types of OS and give brief introduction of each type of OS. Don't give write the answer in details, because once you write the answer in details it will take some more time and you cannot manage time for other questions. So you have to manage your time also during examination. आपको समय को भी प्रबंधन करना है, मैनेज करना है, नहीं तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं
आपको 5-6 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन लास्ट में आपके पास समय अभाव के चलते छूट गया, तो यू हैव टू मैनेज द टाइम ऑल्सो। तो वो तो 12 नंबर 15 नंबर जिसके बेसिस पर जैसा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर वर्क करेंगे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन, और ये व्हाट आर द वेरियस services of an operating system. Now these are the main question from the particular introduction to OS. इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें नहीं डिस्क्राइब, इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं then this sections is completed, then process management। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? क्या 6 नंबर What क्वेश्चन are क्या the है? various services of an operating system? What are the various services of an operating system? तो सर सर्विसेज में फंक्शन हम ऑफ लोग, सर्विसेज से भी ना हो। हाँ सर्विसेज डिस्कस किए थे ना। यस सर, जैसे दोनों सेम ही ना है सर, फंक्शन में भी तो जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी नहीं, मैनेजमेंट। सर्विसेज और फंक्शन सेम कैसे हो जाएगा? सर्विसेज अंडर यूजर व्यू, अंडर सिस्टम व्यू हम लोग डिस्कस किए थे ना। सम सर्विसेज आर रिलेटेड टू द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ओएस का। कुछ सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर सर्विसेज होता है। फंक्शंस में तो वो सारा कंपोनेंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो ओएस प्रोवाइड करता है, लाइक प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो फंक्शन हो सकता है। आपका जो है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, जितना भी आपका कंपोनेंट है वो सब आपका इसका पार्ट हो सकता है। तो ये बोल सकते हैं जो कंपोनेंट आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं, वेरियस कंपोनेंट, तो वेरियस कंपोनेंट में आपका प्रोसेस मैनेजमेंट एज ए कंपोनेंट, और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इस तो ये सारा में जो एक्चुअल फंक्शन है, तो फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट में फंक्शंस क्या है? प्रोसेस को का क्रिएट करना, प्रोसेस का आईडी क्रिएट करना, ये सब फंक्शन है ना। फंक्शंस में आप क्या बताएंगे? जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट है उसमें व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओएस अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो फंक्शंस में क्या बताते हैं? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट? क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का क्रिएशन, ठीक है ना, प्रोसेस आईडी क्रिएट करना, प्रोसेस का यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करना, प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, यानी कि क्रिएशन से लेकर उसका जो है टर्मिनेशन तक इंटायर एक्टिविटीज आपका प्रोसेस का वो दैट इज द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सर्विसेज में क्या आएगा? सर्विसेज और फंक्शन सेम, फंक्शंस के बेसिस पर ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सर्विसेज में क्या आएगा कोई बताएंगे? दोनों, इसलिए दोनों क्वेश्चन मेंशन किए हैं, फंक्शंस भी लिखे हैं और सर्विसेज भी लिखे हैं। सर्विसेज में आपका आएगा, अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम लोग किए थे, अब यहाँ जो सर्विसेज आप बताएंगे यहाँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी था। तो यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू, सर्विसेज भी आपको यूजर व्यू और सिस्टम व्यू के बेसिस पर देखना है। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओएस का क्या सर्विस लेते हैं? जैसे यू आर रनिंग अ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो आपका। यस सर। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आप जो कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं मॉनिटर पर देखना चाहेंगे, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, दैट इज यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस, यानी जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर में वो फाइल फिर से रीओपन करना चाहें तो आपका ओएस उसको उसके अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करेगा, तभी तो फिर से उस नाम से आप उसको सर्च करके ओपन कर पाएंगे ना। यस सर। स्टोर एंड डिलीट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि अभी जैसे हम लोग ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, ये मीटिंग तभी ऑर्गेनाइज हुआ ना जब प्लेटफॉर्म हमको इस पर्टिकुलर जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए
आपका कंपेटेबिलिटी पार्ट जनरेट किया, यानी Yes. Zoom is running on the operating system, that the platform used for running the Zoom is the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व्यू को प्रोवाइड कर रहा है ना ये सर्विस। सर जैसे कंपोनेंट जैसे था वैसे ही सर्विसेज हो गए। जैसे हाँ, कंपोनेंट के भी हर पढ़े कंपोनेंट के अंदर जो आपका सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लिस्टिंग भी तो करेंगे ना, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। समझ रहे हैं? यस अब जैसे आपने कोई गलती किया, ठीक है ना, तो ये एरर टॉलरेट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना, एरर को डिटेक्ट करे। तो इफ यू आर क्रिएटिंग एनी एरर, तो यूजर व्यू का को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो एरर का आपका डिटेक्शन करना, आपने जो गलती किया उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तो दैट इज ऑल अंडर यूजर व्यू। यूजर व्यू में वो सारा हम लोग लिस्टिंग डिस्कस किए थे। सिस्टम व्यू में क्या हो सकता है? सिस्टम व्यू में अगर देखा जाए तो सिस्टम व्यू में सर्विसेज किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है? सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स को एलोकेट करना, यानी कोई भी रिसोर्स आपका है उस इंटरनली अगर प्रोसेस तभी ना हो पाएगा जब आपका सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में एलोकेट होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी या फिर मेन मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो दैट इज अंडर सिस्टम व्यू। आपका कोई भी एप्लीकेशन का अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, वो इंस्टॉलेशन कब हुआ, जैसे अगर ऑपरेटिंग कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं तो एंटीवायरस आपका एक्सपायर होगा, उसका अकाउंटेबिलिटी ओएस मेंटेन करेगा, तभी तो पता चलेगा कि सिस्टम जिस सिस्टम डेट में आपने इंस्टॉल किया था उसके अनुसार कब आपका एक्सपायरी होगा, आपके प्रोडक्ट का एक्सपायरेशन कब होगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी, अगेन प्रोटेक्शन ऑफ योर सिस्टम, ठीक है ना, आपके सिस्टम का प्रोटेक्शन, अगेन दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो किसके सिस्टम व्यू के अंदर आएगा आपका प्रोटेक्शन। तो यूजर व्यू में हम लोग डिस्कस किए थे, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यूजर व्यू में हम लोग डिस्कस किए थे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देन वी जस्ट डिस्कस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। Then we will discuss about file system manipulation, file system manipulation. Then we discuss under this communications as a services, and we discuss error detection as a services. Double R, error detection as a services under user view, and under system view you just mention resource allocation, है ना, रिसोर्स एलोकेशन का काम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटेबिलिटी यानी अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, देन प्रोटेक्शन, ठीक है ना, सिक्योरिटी यू कैन आल्सो ऐड अप। प्रोटेक्शन अगर देते हैं तो प्रोटेक्शन के अंदर फिर सिक्योरिटी मेजर भी है, तो यू कैन आल्सो यूज द सिक्योरिटी एज ए सर्विसेज, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये आपका जो है यूजर व्यू में ये सारा है। यूजर को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो भी यूजर कर रहा है उस इनपुट और आउटपुट में जो है कोऑर्डिनेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सर्विस। तो these are the services provided by the operating system. This is very important question, and this question may be attached or joint with the particular question, base question. What do you mean by operating system? What are the various services of an operating system? What do you mean by operating system? What are the functions of an operating system? तो ये जनरली इसके साथ ये ज्वाइन करके ये क्वेश्चंस 8 नंबर में पूछा जाता है। तो नाउ यू कैन एलेबरेट, ये सब हम लोग डिस्कस किया हुआ है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में यू कैन एलेबरेट कि OS provides you the efficient and convenient environment for the execution of program, ठीक है ना, बिकॉज बेसिक गोल आपका क्या है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर हैंडल करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, नाउ प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इतना क्वेश्चन अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट से कर लेते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन मतलब जो है फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट है उससे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। इतना क्वेश्चन आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ
प्रोसेस मैनेजमेंट, अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट वी हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट वी जस्ट इनिशियल क्वेश्चन क्या है कि प्रोग्राम और प्रोसेस, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ठीक है ना। हाउ program is a passive entity and process is an active entity, ठीक है ना। प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी या प्रोसेस जो है एक्टिव एंटिटी कैसे है। तो कैसे ये आप बता सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस इज योर रनिंग प्रोग्राम, तो वेन एवर द एंड प्रोग्राम इज द स्टोर्ड वन, तो योर प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द परमानेंट एलोकेशन एरिया, तो परमानेंट एलोकेशन एरिया इज योर सेकेंडरी मेमोरी, so your program is resided permanently over there, but whenever you want to access that program become process, and that is the initiation of active entity. तो जैसे ही आपका प्रोग्राम प्रोसेस में बदलता है, then that program which is earlier in used as a passive entity for the system become the active entity, because now that process move from one section of the system to another section of the system. So from secondary memory to main memory, and from main memory further in CPU, and it avails particular resources of the computer system. So this is the main questions, ठीक है ना। पैसिव एंटिटी, एक्टिव एंटिटी एलिबरेट करना, प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंशिएट करना, प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंशिएट, ये 8 नंबर में अगर पूछता है तो एटलीस्ट 5 डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हैं। तो 5 डिफरेंशिएशन में तो एक दो यहाँ दिख रहा है, एक डिफरेंस हो गया आपका। दूसरा एक और चीज हम सजेस्ट करेंगे, whenever you are going to differentiate anything, ठीक है ना, डिफरेंशिएट जब आप कर रहे हो तो you just mention the key points, ठीक है ना। there is one column for key points, and then first part 1 and part 2. part 1 part 2 means like part 1 की जगह आपका प्रोग्राम अगर हो और यहाँ पर अगर प्रोसेस हो, तो उस केस में you just take one point and take your point on the basis of this key point. So you just take one serial number also including the particular, so 1 like in this manner 1, and the key points is the first you just write the definition, and on the basis of first you define program and then process, secondly you just write the answer in this manner. दूसरा entity wise, ठीक है ना, entity wise, so this one is your passive, this one is your active, ठीक है ना। तो प्रोग्राम यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे, प्रोसेस यानी रनिंग प्रोग्राम या प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस, and a set of sequence of instruction, a finite set of sequence of instruction is program. So you just definition part में definition, entity, passive entity, and then active entity, ठीक है ना। और scope और existence you can write, scope और existence program, ये इसका existence का है क्या है, ठीक है ना, within the system and during the particular operation. तो ये आपका प्रोग्राम जो है, इसका स्कोप आप क्या कर सकते हैं, इसका स्पैन एंड कंट्रोल क्या है। स्कोप अगर हम देखा जाए तो प्रोग्राम का स्कोप क्या है, उसका क्या है, लॉन्गर लाइफ स्पैन है ना, लॉन्गर लाइफ स्पैन, एंड दिस वन इज लिमिटेड लाइफ स्पैन। यानी कि जब आप किसी प्रोग्राम को यूज करते हैं, मान लेते हैं एमएस वर्ड आप यूज कर रहे हैं, कोई एमएस वर्ड का कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, तो वो फाइल आपका जब तक उस पर वर्क हो रहा है तभी तक उसका एग्जिस्टेंस होगा। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो वो फाइल का कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम जहां पर वो परमानेंटली रिसाइड हुआ है। दूसरा
एलोकेशन, तो एलोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो प्रोग्राम क्या है, परमानेंटली एलोकेटेड है, परमानेंटली एलोकेशन है, इसका टेम्पोररी एलोकेशन है, ठीक है ना। आपका जो प्रोग्राम है ज्यादा सेंटेंस इसमें नहीं होगा आपका, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है वो आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन यू कैन राइट स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया यू कैन राइट हियर, यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, यू कैन राइट हार्ड डिस्क, यहाँ पर यू कैन राइट प्राइमरी मेमोरी, है ना। तो स्टोरेज एरिया भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट आप एलिब्रेट डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे भी आप एलिब्रेट करेंगे उसमें ये की पॉइंट्स, ये जैसे हमने प्रोग्राम प्रोसेस का एग्जांपल दिया, यू कैन आल्सो यूज लाइक अगर क्वेश्चन आया आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, अभी जो क्वेश्चन लेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर, तो यहाँ पर भी एक फील्ड आप जोड़ देंगे की पॉइंट्स। क्या की पॉइंट है जिसमें आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, ठीक है ना, ये मेमोरी सेक्शन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, या बेस्ट फिट, ये तीन आपका है, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स फॉर दिस। अगर आपके पास तीन ही की पॉइंट है तो यू कैन मेंशन दैट की पॉइंट, तो डिफिनेशन तो एक हो ही गया। फिर उसका आप एलोकेशंस जो है इफिशिएंटली कौन ज्यादा परफेक्ट है परफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रोसेस एलोकेशंस किस पर्टिकुलर एल्गोरिथम से हो सकता है। तो why I suggest this thing, because your answer become unique whenever you add key points in your answer, and it will very much easy to you also whenever you are writing the differentiation part of the both, या more than आपका दो अगर से अधिक है तब भी आपको पॉइंट वाइज डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, ठीक है ना, कंपेयर टू डिस्क्राइब इट इन ए पैराग्राफ मैनर। तो दैट इज द पर्टिकुलर बेस क्वेश्चन। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what do you mean by process state, ठीक है ना। और समटाइम प्रोसेस मॉडल करके भी क्वेश्चन रहता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन वेरियस स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, डायग्रामेटिक व्यू करते हुए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो प्रोसेस स्टेट या इसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस स्टेट के जगह अगर लाइफ साइकिल पूछा जाए तब भी आपका प्रोसेस स्टेट ही है। तो आइदर क्वेश्चन कम, ठीक है ना, तो प्रोसेस स्टेट बोला जाए या और लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, so that is related to the particular, so you can give the process state diagram, and then after, then very important question, what do you mean by PCB और PCB, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बताना है तो उसमें प्रोसेस आईडी, ठीक है ना, प्रोसेस स्टेट, जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं, लिस्ट ऑफ फाइल्स, एग्जीक्यूशन, पीसीआर, ये सारा डिस्क्रिप्शन। तो इससे एक फुल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। देन नेक्स्ट इज द शेड्यूलिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय, what do you mean by, some of the question I just share a PDF in brief manner, that PDF contains the question as well as answer both, but whenever the long question exists, then you have to elaborate more than that particular PDF, उससे थोड़ा elaboration ज़्यादा होगा, तो you just notice मतलब elaborate the answer in that manner, ठीक है ना, जिसमें सारे sections आपका complete हो जाए। तो what do you mean by
scheduler, ठीक है ना. Explain various types of scheduler. तो scheduler is a program, we already have a concept. scheduler आपका प्रोग्राम है. यहाँ पर LTS, MTS और STS का ही बात करना है, ठीक है. तो scheduler और उससे रिलेटेड प्रोग्राम. नाउ scheduler और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. What do you mean by scheduling? So what do you mean by scheduling, है ना? And what are the various criteria for scheduling? तो वेरियस क्राइटेरिया में हम लोग वही टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, ये सारा चीज वहां पर डिस्कस करेंगे. एंड देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना. व्हाट आर द, अभी यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे हैं. आई जस्ट डिस्कस द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो. You can one by one by discuss topic by topic, ठीक है ना. तो what are the various types of scheduling algorithm? So various types of scheduling algorithm we mentioned. Now next जो आपका है इसमें what नहीं, differentiate primitive and non-primitive scheduling algorithm. Non-primitive scheduling algorithm. तो डिफरेंशिएट उसी तरह से करना है आपको, ठीक है ना. देन LTS, इसको तो डिफरेंशिएट कर ही दिया. LTS अगर आप लिख रहे हैं यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूल तो डिस्क्राइब करेंगे. तो ये भी एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट LTS, STS एंड MTS, यानी ऑल टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. तो OS के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्ट स्विचिंग शॉर्ट नोट्स में भी रह सकता है और फुल क्वेश्चंस भी रह सकता है, ठीक है ना. देन एंड एक्सप्लेन डिस्पैचर. डिस्पैचर जो आपका डिस्पैच करता है कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, तो डिस्पैचर का क्या काम है, ठीक है ना. और अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं वेरियस क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग, देन उससे भी बहुत सारा शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन निकलता है. टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये सारा क्वेश्चंस क्या क्या आप है, ठीक है ना. नेक्स्ट, अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रह सकता है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है, लाइक FCFS, SJF, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रायोरिटी, राउंड रोबिन, ठीक है ना, हैविंग क्वांटम वैल्यू सपोज 2, 4 कुछ भी. तो इससे रिलेटेड यानी जितना भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है. नाउ सर 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे? यस, 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, CONTEXT. जब आपका कोई प्रोसेस दूसरा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है और दूसरा प्रोसेस को लोकेट करता है ना, स्वैप इन स्वैप आउट, दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग.
इसमें एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी है, एक्सप्लेन आईपीसी, ठीक है ना। कुछ का हम सॉल्यूशन आप पहले लिखिए, जिसका नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। तो एक्सप्लेन आईपीसी इंटर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ब्रीफ इसके बारे में, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसमें बेसिकली दो तरह का प्रोसेस हम लोग बताए थे कि आपका जो है प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और एक प्रोसेस होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो आईपीसी में इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस नीड टू बी अ इंटर प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जैसे हम प्रोग्राम के एग्जांपल भी लिए थे कि अगर आप एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो वो इंटर, आपका जो है इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसका इंटर ऑपरेबिलिटी फीचर्स उसमें होना चाहिए। तो इसमें जो आपका आईपीसी है उसमें दो तरह से हम लोग जो है इसको पूरा करते हैं, मैसेज पासिंग और दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग और शेयर्ड रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो शेयरिंग और मैसेज पासिंग, ये दो तरीका से हम लोग आईपीसी एलोकेट करते हैं सिस्टम में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है। तो जस्ट मेंशन, देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन, ये सारा हम लोग डिस्कस किए थे। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय CSP, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है ना। CSP आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय CSP, और CSP में फिर एंट्री सेक्शन, वो आपका जो भी आप यूज करते हैं। देन हियर वन क्वेश्चन, व्हाट इज सेमाफोर, ठीक है ना। अभी ये कंटिन्यू रखेंगे, कितना क्वेश्चन, यू जस्ट टेक द क्लिक, इसका एक आप क्लिक ले लीजिए, ठीक है ना। टेक द स्नैप and try to write the answer of these questions in your own word, and it will continue in next class also, and I will try to give you the solution part also, these questions, but first you try to write the answer in your own language, ठीक है ना। जिसका आप लिख सकते हैं, जिसमें डाउट होगा वो उस क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मेंशन करना आफ्टर डिस्कशन ऑफ द इंटायर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। We will discuss the question paper also, because I have question paper and I just give you the solution of that one. Okay, sir.